اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے. مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے, جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے. اس کا نام تھا میرڈ وومنز پراپرٹی ایکٹ, اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں. سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے. کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے, لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے. حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری, وہ کام صحیح نہیں, وہ ان اسلامک ہے, غیر اسلامک ہے. وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے, مثال کے طور پہ ڈانسنگ, فلم ایکٹنگ, ماڈلنگ, یہ سارے کام حرام ہیں. بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا, جوئے کے اڈے میں کام کرنا, غیر اسلامک کام کرنا, یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے, پوٹری برتن بنا سکتی ہے, آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے. اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز. وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں. عورت تجارت بھی کر سکتی ہے, لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے, والد کے ذریعے, بھائی کے ذریعے, شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے. اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے, نرس بنانا ضروری ہے, ڈاکٹر بنانا ضروری ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے, میری والدہ حجاب کرے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے, کم از کم ڈاکٹر بنے, گائنیکولوجسٹ بنے. لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں, ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے. فائنینشیل obligation اسلام میں, معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے. عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ, فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے, چاہے وہ روٹی کپڑا یا مکان ہو, چاہے کھانے کے لیے ہو, پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو. یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے. عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے, لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے, جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے, وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے. اگر وہ چاہے تو 1 روپیہ بھی اپنے فیملی, اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے. چاہے تو کر سکتی ہے, کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے. فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی. اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو, چاہے شوہر غریب یا امیر ہو, وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ, سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے. اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے, لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اسلام میں
औरत माशी तरीके से बड़ी जिम्मे है और औरत के माशी अगर आप देखेंगे हुकूक वो कई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब शादी होती है, शादी के वक्त, निकाह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह औरत को महर दिया जाता है, उसका फायदा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि आप औरत को शादी में निकाह के वक्त एक तोहफा दो। महर निकाह के लिए फर्ज है, महर के बिना निकाह हो ही नहीं सकता और औरत इज ऑन द रिसीविंग एंड, उसे फायदा है। लेकिन हमारे इस मुल्क के माशरे में हिंदुस्तानी तहजीब में उल्टा है। हिंदुस्तानी तहजीब में शादी के वक्त औरत मर्द को दहेज देती है, औरत मर्द को डाउरी देती है और ये बहुत आम है। अफसोस की बात है कि कई मुसलमान भी इस हिंदुस्तानी तहजीब को इख्तियार करते हैं। मर्द निकाह के टाइम पे औरत को महर देता है, लेकिन हमारे माशरे में, हिंदुस्तानी माशरे में उल्टा है। डाउरी औरत मर्द को देती है और उसके मयार के हिसाब से, अगर वो ग्रेजुएट है तो 1 लाख रुपया डाउरी दहेज, अगर इंजीनियर है तो 5 लाख रुपया, अगर डॉक्टर है तो 10 लाख रुपया, 1 मिलियन रुपीस, जैसे भेड़ बकरियों को बेचा जाता है मंडी में। इस्लाम में औरत से दहेज या डाउरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मांगना हराम है। अगर आप इंडिकेशन भी देते हैं धक्के चुपे अंदाज में, अगर लड़के वाले लड़की वालों से कहते हैं कि मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, उसका मतलब 4 बेडरूम का फ्लैट डाउरी में दो, दहेज में दो, यह हराम है। या कोई कहे कि मेरे बेटे को मर्सिडीज कार में घूमने की आदत है, यानी इनडायरेक्टली धक्के छुपे अंदाज में आप कह रहे हैं कि मुझे मर्सिडीज कार चाहिए दहेज में। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दहेज औरत से मांगना इस्लाम में हराम है। अगर खुशी से लड़की वाले को तोहफा देते तो आप ले सकते, लेकिन मांगना जबरदस्ती या इनडायरेक्टली मांगना इस्लाम में हराम है। माशी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन बड़ी जिम्मे है और इस्लाम में अगर डिवोर्स होता है, तलाक होता है या शोहर मर जाता है, औरत विधवा हो जाती है, उसे इद्दत के दौरान उसकी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज, जो खर्चा होता है, माशी खर्चा जो होता है इद्दत के दौरान, उसकी जिम्मेदारी है आदमी की। अगर वो जिंदा है तलाक के दौरान वो सारा खर्चा उठाना चाहिए। अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसकी दौलत में से वो इद्दत के दौरान सारा खर्चा मर्द के दौलत में से औरत का ख्याल रखा जाता है। और अगर वो पेट से है, हमल से है, तो जब तक बच्चा पैदा होता है उस टाइम तक सारा खर्चा आदमी को उठाना चाहिए। और अगर बच्चा पैदा होता है और बच्चा है तो जब तक बच्चा बालिग होता है उसका खर्चा उठाना चाहिए मर्द को। ये है इस्लाम में खवातीन के हुकूक। और अगर कोई शख्स का इंतकाल होता है तो उसके इनहेरिटेंस में अल्हम्दुलिल्लाह औरत का भी हिस्सा है। मिरास के अंदर अगर किसका इंतकाल होता है तो जायदाद में हिस्सा मर्द के अलावा औरत का भी है। ये था मुख्तसर से खवातीन के माशी हुकूक इस्लाम में। अभी हम तस्किरा करेंगे इस्लाम में खवातीन के माशरती हुकूक। मैंने माशरती हुकूक को 4 हिस्सों में बांटा है: बेटी के हुकूक, बीवी के हुकूक, वालदा के हुकूक, मां के हुकूक और बहन के हुकूक। पहले हम तस्करा करेंगे इस्लाम में माशरती हुकूक बेटी के। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तकवीर में, सूरा नंबर 81 आयत नंबर 8 और 9 में, जब वो जिंदा गड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म के लिए तुम्हें कत्ल किया गया था, अल्लाह ताला फरमाते जब वो जिंदा गड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म के लिए तुम्हें कत्ल किया गया था, इसके मानी लड़कियों का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। ना ही सिर्फ लड़कियों का कत्ल करना हराम है, दोनों
लड़के और लड़कियों को कत्ल करना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में, और सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो गुर्बत के खौफ से। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देगा। मीन्स गुर्बत के खौफ से आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देगा। यह कहा गया है सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में। और अल्लाह ताला फिर से फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में कि आप बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला आपके बच्चों और आपको रिस्क देगा। बच्चों का कत्ल करना संगीन जुर्म है। इस्लाम में ना ही सिर्फ बच्चों का कत्ल करना जुर्म है, खुसूसन लड़कियों का, लेकिन जब आपको पता लगता है कि कोई लड़की पैदा हुई और आप अफसोस करते हैं, इस्लाम में इसकी मुमानियत है। अगर आप अफसोस करते हैं कि आपके घर में कोई लड़की पैदा हुई, यह भी इस्लाम में गलत है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 58 और 59 में, जब कोई शख्स को खुशखबरी मिलती है कि उसके घर में एक लड़की पैदा हुई और उसका मुंह छोटा हो जाता है, उसे अफसोस होता है, वो अपना चेहरा बाकी लोग से छुपाता है और सोचने लगता है क्या मैं इस लड़की को जिल्लत की जिंदगी जीने दूं या इसे जिंदा दफन करूं। कितनी घिनौनी सोच है। तो सिर्फ अफसोस करना कि एक लड़की आपके घर में पैदा हुई, यह भी इस्लाम में एक जुर्म है, इसकी मुमानियत है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है अहमद इब्न हंबल की, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2104 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई भी शख्स अपने 2 बेटियों को अच्छे तरीके से परवरिश करता है जब तक वो बालिग हो जाती है, तो आखिरत के दिन में वो शख्स मेरे इतने करीब रहेगा, और 2 उंगली अपने ऐसा करते इतने करीब। और एक हदीस है जो इब्न माजा की है, जहां अल्लाह के रसूल फरमाते कि कोई भी शख्स अगर 2 लड़कियों की परवरिश करता है, उनके साथ अच्छा हुस्न सुलूक करता है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ कहा नहीं कि लड़कियों और लड़कों को अच्छे तरीके से परवरिश करना चाहिए, उन्होंने एक जिंदा मिसाल पेश की। एक वक्त जब एक शख्स अपने बेटे को चूमता है और अपनी मांडी पे रखता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ वो नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस आदमी ने नाइंसाफी की, उसे अपने बेटी को भी चूमना चाहिए और अपने दूसरे मांडी पे बिठाना चाहिए। ये फर्ज है आपका। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।